Hello dear student, welcome to the official channel of Gyandeep School. I hope that you all are stay at home and I hope that you all are maintaining social distancing. So now let's start. Today I am going to teach you science of class 1 and the first chapter is looking around. Before I start this chapter, I want to say that when you are stay at home or when you are in your surrounding, you are looking lots of things, some things that move, but some things that you see that they cannot move by own. Have you ever think that what types of these things? Same things today I am going to teach you about your surroundings things. When you are in your neighborhood, you see lots of things and you should know that these things, some things are living things and some non-living things. Today we are going to learn what is living things. Here you can see the definition of living things. We see many things around us. Some things have life in them. They are called living things. It means आप अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे थिंग्स देखते होंगे, जिसमें से कुछ ऐसे थिंग्स में आप उसमें से कुछ ऐसे थिंग्स देखते होंगे, सम थिंग्स आप देखते होंगे उसमें लाइफ रहता है. दैट मीन्स वो मूव करता है, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर पाता है बाय ओन. दैट मीन्स वो खुद से मूवमेंट कर पाता है. These things are called living things. These things are called living things. Here, some examples of living things are cows. When you see cows, then you see that cows move one place to another place, and you see that cows eat grass for growth. And some another example is man, and another one is trees, dogs, and etc. These are living things. It means आप जब इस थिंग्स को देखते होंगे, कॉज, मैन, दैट मीन्स आप और मैं, या फिर आपके सराउंडिंग जो भी ह्यूमन बीइंग रहते हैं, उसे हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं. वो लिविंग थिंग्स में आता है. ट्रीज. नाउ द क्वेश्चन इज दैट, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ट्रीज तो मूव नहीं करता है, बट इट डजेंट मीन दैट ट्रीज इज नॉट लिविंग थिंग्स. ट्रीज इज ऑल्सो लिविंग थिंग्स बिकॉज ट्रीज मेक्स own food, and trees have also need trees have also need food for growth. That means trees को भी अपने growth के लिए food की ज़रूरत होती है. You can say that trees are also living things. And here is dogs. आप dogs को देखते होंगे, dogs भी move करता है. dogs को भी आप कुछ खाते हुए देखे होंगे. dogs भी something eat करता है. It means dogs are also living things. Okay. Now another is non-living things. Here is non-living things. Some things do not have life
in them, they are called non-living things. Now अब आप अपने सराउंडिंग्स में देखते होंगे कि कुछ चीज़ों में लाइफ नहीं रहता है. फॉर एग्जाम्पल कार्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, पेन्स, बुक्स एंड एक्सेट्रा. दैट मीन्स जिस आप सपोज दैट आई होप दैट कि आप ये वीडियो आई थिंक और कंप्यूटर में देख रहे होंगे या फिर मोबाइल्स में देख रहे होंगे. तो जो आप कंप्यूटर में देख रहे हैं तो कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं कि इसमें लाइफ नहीं होती है. ना ही आप मोबाइल के बारे में भी जानते हैं इसमें लाइफ नहीं होती है. दैट मीन्स ये हुआ कि मोबाइल्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग हैज़ नो लाइफ. ओके. एंड आप जो पेन यूज करते हैं, पेन में भी आप देखते हैं कि वो मूव नहीं करता है. उसे सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत नहीं होती है. दे हैव नो नीड टू फूड. So you can say that pens are also non-living things. And here another example is books. Books को आप देखते हैं कि बुक्स में भी लाइफ नहीं होती है. बुक्स को भी सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत नहीं होती है. That means books are also non-living things. Okay? I hope that you understand very well that what is living things and non-living things. Now I would like to explain once again. Here, living things. We see many things around us. Some things have life in them. They are called living things. That means ये हुआ कि हम लोग अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे थिंग्स को देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स को देखते हैं, जिसमें से कुछ थिंग्स में होता है लाइफ होता है. दैट मीन्स कुछ थिंग्स के बारे में आप देखते होंगे कि उसे ग्रोथ करने के लिए उसे फूड चाहिए होता है. वो ब्रीद करता है. दे कैन मूव, वो मूव करता है. तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, लिविंग थिंग्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल्स काउज, मैन, ट्रीज, डॉग्स एंड एक्सेट्रा. हियर नॉन लिविंग थिंग्स, some things do not have life in them, they are called non-living things. That means some things आप अपने सराउंडिंग में देखते होंगे कि उसमें लाइफ नहीं होती है. एंड they don't need food for growth. That means ये हो गया, आप कुछ चीज़ें ऐसे देखते होंगे अपने सराउंडिंग्स में जिसको ग्रोथ करने के लिए फूड की ज़रूरत नहीं होती है. और यू कैन से दैट दे डोंट नीड टू ग्रो. दैट मीन्स उसे ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती है एंड वो ग्रो नहीं होता है बिकॉज दे हैव नो लाइफ, क्योंकि उसमें लाइफ नहीं होती है. सो वो ग्रोथ नहीं कर पाता है. तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल काउज, मोबाइल्स, computers, pens, books and etc. Okay. Now here is living things are different from non-living things. That means ये हुआ कि आप देखते होंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में समथिंग डिफरेंट आपको देखने को मिलता होगा. फॉर एग्जाम्पल लिविंग थिंग्स ब्रीद. आप ये जानते हैं आप खुद लिविंग थिंग्स है तो आप ब्रीद करते हैं. एंड आप नॉन लिविंग थिंग्स में अगर इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो आप मोबाइल फ़ोन में देखते हैं कि उसे ब्रीद करने की ज़रूरत नहीं होती. दैट मीन्स यू कैन से दैट दे कैन नॉट ब्रीद. इट मीन्स लिविंग थिंग्स ब्रीद करता है एंड नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीद नहीं कर सकता है. लिविंग थिंग्स कैन मूव. दैट मीन्स लिविंग थिंग मूव कर सकता है. बट non-living things, if you talking about non-living things, they cannot move. That means ये हुआ non-living things move नहीं कर सकता है. One another different is living things grow. It means living things grow करता है. But you can say that non-living things cannot grow. It means they cannot grow. Means non-living things grow
नहीं कर सकता है। वन अनदर डिफरेंट इज लिविंग थिंग्स फील, दैट मीन्स लिविंग थिंग्स फील करता है किसी भी चीज़ों को। आप कोई चीज़ को टच करके, सपोज when you close your eyes, or now close your eyes and touch your mobile or touch your notebooks, then you feel that it is notebooks, or touch something, suppose that you touch your pants, then you feel that it is pen. It means living things feel, but non-living things cannot feel. It means they cannot feel. Now you can say that non-living things feel नहीं कर सकता है। Living things need air, water and food. Living things को ज़रूरत होती है air, water and food की, but they do not need air, water and food. It means non-living things को air, water and food की ज़रूरत नहीं होती है। I hope that you understand very well that what is different between living things and non-living things. Now I would like to repeat that I hope that you already take your notebooks and pen, or if you know that how to take a screenshot, then take a screenshot one by one, and or you can write down on your notebooks, because if you write all the definition that is mentioned here, then I think when you forgot, then you recall that things with the help of your notebooks or a screenshot. If you ask me that if there is two options, that is a screenshot or notebooks, I prefer and I strongly recommend you that you should use notebooks instead of a screenshot. ओके, बिकॉज होता क्या है, जो चीज़ मोबाइल में रहता है तो वो मोबाइल में रह जाता है। सो आई रिकमेंड यू दैट राइट all the definition on your notebooks, and when you are starting write on your notebooks, then pause the video. Okay, here is now another topic is natural and man-made things. That means when you see around what it means when you see surrounding your home, or you can say when you are at your home, or you are at near somewhere, you see that something that is made by man and something that is occurring naturally. Here you can see the definition of natural things. Some things like the sun, the moon, rocks, wood and water are not made by man. It means आप देखते हैं कि सन, मून, रॉक्स, वुड, वाटर, ये सब को आप देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, तो आपको जानना चाहिए कि ये सब मैन के द्वारा नहीं बनाया गया। दैट मीन्स इसे हम लोग नहीं बनाए हैं। सो वी कैन से दैट दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। नेचुरल मीन्स जिसे गॉड ने बनाया है। नेचुरल मीन्स जिसे गॉड ने बनाया है, और जिसे हम लोगों ने बनाया है उसे हम लोग कहते हैं मैन मेड। बट जिसे गॉड ने बनाया उसे क्या कहेंगे? नेचुरल थिंग्स। ओके, हियर एग्जाम्पल इज सन, मून, रॉक्स। आप इस सब बारे में जानते हैं कि इसे किसने बनाया? गॉड ने बनाया। सो यू कैन से दैट दीज आर नेचुरल थिंग्स। ओके, हियर इज मैन मेड थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बुक, ट्रेन, हाउस, क्लोथ्स, पेंसिल and sorry
क्लोथ्स, पेंसिल एंड पेपर आर मेड बाय मैन। दैट मीन्स आप ये देखते हैं, आप जो पेंसिल यूज करते हैं, आप जो पेपर यूज करते हैं, आप जो नोटबुक्स यूज करते हैं, आप जो बुक्स यूज करते हैं, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप जो कंप्यूटर यूज करते हैं, वो सभी हम लोग के द्वारा बनाया गया। हम लोग में से ही कोई बनाया है। दैट मीन्स मैन बनाया है। कौन बनाया है? मैन बनाया है। सो यू कैन से दैट दीज थिंग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। ओके, once again, non-living things like book, train, house, clothes, pencil, and paper are made by man. They are called man-made things. Okay, I hope that you understand very well. Once more, I would like to repeat it. Natural things हम लोग उसे कहेंगे जिसको गॉड ने बनाया है। जो हम लोगों के द्वारा बनाया नहीं गया है उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल सन, मून, रॉक्स, वुड एंड वाटर। बट जो चीज़ों को जो सम थिंग्स सम नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा है जिसे कि हम लोग ने बनाया है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बुक, ट्रेन, हाउस, क्लोथ्स, पेंसिल एंड पेपर, इसे हम लोगों ने बनाया है। दैट मीन्स मैन बनाया है। सो यू कैन से दैट दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। ओके, नाउ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स related to this chapter, that is around looking around here, a tadpole turns into a frog. That means tadpole जब फ्रॉग स्मॉल रहता है, जब वो छोटा रहता है तो उसे हम लोग टैडपोल कहते हैं और वही बड़ा होकर फ्रॉग कहलाता है। ओके, वन अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज अ कीटन ग्रोज इनटू अ कैट। दैट मीन्स छोटा कैट को हम लोग क्या कहेंगे? स्मॉल कैट को हम लोग क्या कहेंगे? कीटन। और यही ग्रो होके क्या बन जाता है? कैट बन जाता है। अनदर इज अ कैटल पिलर ग्रोज इनटू अ बटरफ्लाई। दैट मीन्स आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जब स्मॉल बटरफ्लाई रहेगा उसे क्या कहेंगे? कैटरपिलर। बट वो जब बड़ा हो जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? बटरफ्लाई कहेंगे। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स। दैट मीन्स ये हो गया जितना भी लिविंग थिंग्स है हमारे सराउंडिंग्स में, चाहे वो हम लोग खुद हैं, दैट मीन्स ये हुआ जितना भी लिविंग थिंग्स है, ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स। अंडरस्टैंड? आप यहाँ ऊपर में देखे थे नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। इट मीन्स ये हुआ जितना भी लिविंग थिंग्स है सभी क्या है? नेचुरल थिंग्स है। और जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या हो जाएगा? मैन मेड थिंग्स। ओके, नाउ टूडेज वर्क फॉर यू। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। दैट मीन्स ये हो गया, आप इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से ऑब्जर्व करें। आपको जो लगता है कि ये सही है, ट्रू है, तो उसमें T राइट डाउन करें। और आपको लगता है कि ये फॉल्स है तो उसमें F राइट डाउन करें। ओके, और आप जो भी वीडियोस देखते हैं तो उसका जो होमवर्क आपको मिलता है उसे आप बनाया करें। अपने घर पे जो भी हैं, आपके भैया हों, आपके सिस्टर हों, या आपकी मदर या आपके फादर, आप उससे चेक करा लें। या फिर आप आई थिंक बेटर ये होगा कि आप उसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर दे के, फॉर एग्जांपल सपोज दैट सन इज़ अ लिविंग थिंग, अगर आपको ये लगता है कि ये ट्रू है या आपको लगता है कि ये फॉल्स है, तो अगर आपको फॉल्स लगता है तो F लिखें कमेंट बॉक्स में, 1 लिख के F लिख दें। अगर आपको लगता है कि ये ट्रू है तो
वन लिख के टी लिख दें। ओके, आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे ये चैप्टर। द फर्स्ट चैप्टर इज लुकिंग अराउंड फॉर क्लास 1। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ